Hello, students. Welcome back to our channel Gyan Manji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. Students, today onwards, we are going to start our supplementary book. I hope you all have your supplementary book. So, we will write supplementary book in short like SB, supplementary book. Okay, so here you can see we have our first SB1 means supplementary book 1 first unit, that is non-fiction, and in first unit that is our first page like SB1 पहली सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट पेज जो है SB1 वो है. So in this unit, as we had talked before, in this unit non-fiction, so the name of the unit is non-fiction. So in this unit we will talk about some realistic based events and all the uh, things. Okay, so that will be divided into several other parts. Like from honeysuckle we will take फोर्थ एंड सिक्स्थ यूनिट एंड दैट्स सप्लीमेंट्री बुक जो है आपकी अ पैक्ट विद द सन, उसमें से फिफ्थ यूनिट जो तानसेन वाला है वो हम लोग ये नॉन फिक्शन में लेंगे. बिकॉज लिटरेचर जो है वो डिवाइड होता है फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्रीज, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा. तो वी हैव various kinds of literature. So here non-fiction, that is the new and different kind of part of literature. So in this non-fiction stories means based on real person, based on real events we will talk about. There will not any kind of imagination, there will not any kind of opinions. Okay, so in this story, opinions in the sense there will not any particular writer who will write their imagination. Okay, so there is no place for imagination, it's all about the realistic. So here you can see SB1 concept time 1, open it, and if you don't have then here you can see. So first we have facts and opinions. So let's see what is this. We have already talked about this, but then also we will go through this because that is very important part in our literature. If you learn literature, then you must know about the facts and opinions. Okay, so if we want to write something, we want to write a piece of literature, on that time we must know the facts. So here we have the facts. While reading a text, we come across various statements which are either facts or opinions. So while reading a text, whenever we read a text, there are various statements. So those statements, they are divided into facts and opinions. कुछ भी हम लोग रीड करते हैं, टेक्स्ट रीड करते हैं while reading a text, मतलब कि कुछ भी रीड करते हैं, ताकि वो न्यूज़पेपर हो, नॉवेल हो, ऐसी कुछ भी स्टोरी. तो जब वो हम लोग रीड करते हैं तो बहुत ऐसे हम लोग स्टेटमेंट्स भी देखते हैं. तो वो स्टेटमेंट के दो पार्ट्स है. कौन कौन से पार्ट्स है? या तो फिर फैक्ट्स है या फिर वो ओपिनियंस है. अ फैक्ट इज़ अ स्टेटमेंट that is known to be true and can be proved, and an opinion is a feeling or a thought that a person has about someone or something. So that is our opinions. Okay, so fact is a statement. Fact क्या है? हमें पता चल गया कि फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ फैक्ट एंड व्हाट इज़ ओपिनियन? सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. तो हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से यहाँ पे स्टार कर देंगे. कहाँ पे? फैक्ट्स एंड ओपिनियंस के पास. कैसे करेंगे? लाइक ऐसे. ओके,
Why? Because that is very important to learn, because there is a kind of definition that what is fact. Okay, then an opinion ये है. Okay, a fact is a statement that is known to be true and can be proved. जो फैक्ट है वो सच होते हैं और वो उसे सच होने के लिए प्रूव भी कर सकते हैं, फैक्ट जो है वो, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं जैसे जिसका यूज़ करके हम उसे प्रूव भी कर सकते हैं. An opinion is a feeling or a thought that a person has about someone or something. तो यहाँ पे ओपिनियन क्या है? हमारे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये जो सारे वर्ड्स हैं तो हम वो हमारी फीलिंग्स शेयर करते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो हम चेंज करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं. कैसे? कुछ बात है उसमें हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो फैक्ट नहीं है, वो क्या है? हमारा खुद का थॉट है, हमारा खुद का विचार है, तो हुआ वो हमारा ओपिनियन. सो व्हाट इज़ ओपिनियन? एन ओपिनियन इज़ अ फीलिंग और अ थॉट दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट समवन और समथिंग. कोई वस्तु के लिए हमारा ओपिनियन हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति के लिए हमारा ओपिनियन हो सकता है. और जो ओपिनियन है वो क्या है? हमारा विचार है और हमारी फीलिंग्स है. सो इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. गुड रीडर्स सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस. सो लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन दैट. तो अच्छे रीडर्स क्या होते हैं, उसका अच्छी बात क्या होती है गुड रीडर्स की? सो गुड रीडर्स दे सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस. ओपिनियन से गुड रीडर जो फैक्ट होते हैं वो अलग रखते हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं करते हैं. तो चलो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. सो फैक्ट्स, दिस आर ट्रू फॉर एवरीवन. ओपिनियंस, दिस चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फैक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या फैक्ट लेते कि हमारा जो स्टेट है उसका नाम क्या है? गुजरात है. वी लिव इन गुजरात स्टेट. सो दैट इज़ फैक्ट, राइट. जो पर्टिकुलर प्लेस पर है यहाँ पे उसकी बॉर्डर आती है जहाँ से फिर क्या शुरू होता? पाकिस्तान का बॉर्डर भी यहाँ पे आता है. तो वो क्या है? वो हुआ हमारा फैक्ट. मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है कि चलो मेरे मुताबिक तो ये है, नहीं. दैट इज़ अ फैक्ट कि जो हम प्रूव कर सकते हैं, सच प्रूव कर सकते हैं, तो वो हुआ हमारा फैक्ट. दिस आर ट्रू फॉर एवरीवन, राइट. देन व्हाट इज़ ओपिनियन? दिस चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक एक लोग से खुद का ओपिनियन चेंज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर if we talk about this COVID-19 pandemic situation, then person to person they will give their own opinion. For example, कोई ऐसा बोलेंगे कि नहीं घर के बाहर निकलना है, हम तो निकलते हैं और हम लोग निकलेंगे भी. कोई ऐसा बोलता है कि नहीं घर के बाहर तो निकलना ही नहीं है. कोई बोलता है कि चलो मास्क सैनिटाइज़र साथ में रख कर निकलेंगे, पर निकलेंगे तो सही. कोई कहता है कि मास्क पहनने की अब कोई ज़रूरत नहीं है. तो वो क्या हुआ? खुद की अपनी बात हुई. जो ओपिनियन है खुद का, लोगों का, वो हुआ. और वो सब जो ओपिनियन होता है वो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है, सेम कभी नहीं रहता, तो वो चेंज होता है, रहता है. फैक्ट्स, दिस कैन बी प्रूवन. तो ये प्रूव हो सकता है, फैक्ट्स जो है वो. एंड ओपिनियन जो है, दिस कांट बी प्रूवन बिकॉज दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. जो ओपिनियन होते हैं वो प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग लोग के मुताबिक अलग अलग बात होती है. तो ओपिनियन भी ऑफ कोर्स अलग अलग ही रहेगा, तो हम उसे प्रूव नहीं कर सकते, वो प्रूव नहीं होता. तो यहाँ पे वी हैव एग्जाम्पल्स. द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो कोई कहता है कि नहीं सन, मेरे मुताबिक तो सन ईस्ट से नहीं,
वेस्ट से निकलता है। तो वो क्या है, वो हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं, आपने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, तो क्या है, अगर फैक्ट है तो वो हम प्रूव कर सकते हैं कि चलो अर्ली मॉर्निंग उठो, कहाँ से आता है, कंपास जो होता है वो साथ में रखेंगे, तो जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा तो उसके मुताबिक हम लोग देख सकते हैं कि नहीं नहीं, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो जो है वो है हमारा फैक्ट, क्योंकि उसे कोई चेंज नहीं कर सकता और हम उसे प्रूव भी कर सकते हैं। दोनों बात हुई फैक्ट की। फिर अ वीक हैज़ 7 days, कोई कहता है कि नहीं, मेरे वीक में तो 6 days रहते हैं, मेरे वीक में तो 8 days होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो फैक्ट है वो सभी के लिए एक ही है, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता और व्यक्ति खुद का बता भी नहीं सकता कि ये व्यक्ति के लिए वीक वीक में 2 ही दिन आते हैं, ये व्यक्ति के लिए उसका वीक 6 days के लिए आते हैं। नो नो, दैट कांट बी हैपन बिकॉज दैट इज़ फैक्ट। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यस, हमारी देश भारत इंडिया, उसकी राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो उसे भी कोई चेंज नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज दैट इज़ अवर फैक्ट। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट्स। फैक्ट्स को क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रूव कर सकते हैं और उसमें लोगों के ओपिनियंस नहीं चलते। ओके, नाउ लेट्स मूव विथ ओपिनियन। समर इज़ द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। तो ये मेरे मुताबिक ये हो सकता है, या फिर फॉर स्टूडेंट्स समर इज़ द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा वेकेशन होता है इसलिए। पर हमारे मुताबिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे बच्चे से नहीं मिल सकते। दैट्स वाई फॉर अस समर सीज़न इज़ नॉट द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग सीज़न बेस्ट होती है, तो ओपिनियन चेंज रहता है। ये फैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि सीज़न बहुत सारी है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीज़न इम्पॉर्टेंट रहती है। तो ये भी हुआ हमारा ओपिनियन। दैन bitter gourd is delicious. Oh my god, I don't like bitter gourd. That is not delicious. I don't like it. तो क्या हुआ? किसी के मुताबिक bitter gourd बहुत ही delicious हो सकता है, पर but my point of view, that is not so delicious, right? So person to person the opinion will be changed. Then the third, Nagpur is a beautiful city. No, for my point of view, Mahua is beautiful city. तो कि ये क्या हुआ? अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ओपिनियन होता है जो हम लोग प्रूव नहीं कर सकते और जो अलग अलग है एक दूसरे से, तो वो हुआ हमारा ओपिनियन। Okay, now let's move with concept time 2 and that is active listening. हमने पहले भी देखा था कि एक्टिव लिसनिंग में कितने स्टेप्स होते हैं दैट वी मस्ट फॉलो। एज अ स्टूडेंट यू मस्ट फॉलो दोज स्टेप्स वाइल एक्टिव लिसनिंग इज देयर। टू एक्टिवली लिसन means to give your full attention to the speaker. It requires us to concentrate, understand what the speaker is trying to communicate, and remember what was said. By listening actively, we show respect to the speaker. Follow the steps given below to listen actively. So, what is active listening? Means when the speaker is speaking. For example, you are in the school and the lecture is going on, right? So your teacher is speaking continuously. So what you have to do? You have to look at your teacher. Then if you are understanding, then nod your head, and if you have any questions, then ask them, and whatever you have understood, that you have to summarize it, that you have to remember it very carefully. So give your full attention to the speaker. That is the main part of active listening. To actively listen means to give your full attention to the speaker.
इट रिक्वायर्स अस टू कॉन्सेंट्रेट. उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी है कि कॉन्सेंट्रेशन, अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड रिमेंबर व्हाट वाज सेड. तो आपको याद क्या रखना है, मतलब कि जब कोई बोलता है तो आपको क्या याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटफुली हमें सुनना है, फिर उसे समझना है, और स्पीकर क्या आपके साथ कम्युनिकेट मतलब कि क्या बातचीत करना चाहता है वो आपको समझने की ट्राई करना है, और फिर उसे याद करते रहना है कि क्या बोला है उसने. बाय लिसनिंग एक्टिवली वी शो रिस्पेक्ट टू द स्पीकर. एक्टिवली लिसनिंग वो क्या होता है जिससे हम लोग हमारे स्पीकर को रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं. So here we have the steps. Look at the speaker while they are talking. I feel confident about my speech. तो कोई हमारे साथ बात करता है तो हमें क्या करना है, We have to give look to them. हमें स्पीकर के सामने देखना है, राइट. अगर आप कुछ बात करते हो तो एज अ लिसनर हमें आपके सामने देखना है. But as a teacher, if we are speaking, so you have to look at your teacher. You have to understand whatever your teacher wants to communicate with you. Then listen to the speaker without interrupting them. तो बीच में कुछ बोले बिना अगर टीचर कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, सारे टॉपिक अच्छे ही होते हैं, पर कुछ टॉपिक में टीचर आपकी कुछ बात कर रही है, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बीच में अगर कोई बहुत ऐसे सवाल पूछेंगे तो बहुत ऐसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो नोट डाउन कर लेना है. तो फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक वी विल आस्क द स्पीकर दैट व्हाट डिड यू ट्राई टू कन्वे विथ अस, या फिर raise your hands if you want to ask any question. So that we have to do. I spoke well in class today. तो यहाँ पे क्या है, कोई हमसे बात कर रहा है तो उसके बीच में हमें कभी इंटरप्ट नहीं करना है. Then restate what the speaker shared. तो स्पीकर ने क्या क्या आपके साथ शेयर की बात वो आपको फिर से दोहरानी है. सो यू आर कॉन्फिडेंट दैट योर स्पीच वेंट वेल. तो वो सब हमें फॉलो करना है. दैट वी विल फॉलो. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट एक्टिव लिसनिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव विथ सेकेंड SB. So here we have practice question 1. Read the following sentence and write if it is fact or opinion in the space provided. तो यहाँ पे आपको पेंसिल से ही लिखना है. Okay students, so we have first example. A giant tortoise can live to be over 150 years old. So that is fact because that thing has been proven that yes, tortoise that can live for over 150 years. Now math is easy and interesting. I don't think so math is so easy and interesting. So है easy है, but अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा. तो हो सकता है ये भी हो और नहीं भी हो. तो जब ये बात प्रूव ना कर सके, ये जो बात है प्रूव ना कर सके मतलब कि मेरे लिए भी वो अलग है, इसके मुताबिक भी ये अलग है, जो फैक्ट है ही नहीं, तो वो क्या है, हमारा ओपिनियन है. देन thunderstorms are frightening when you are home alone. Then everybody loves cricket in India. Then this dress costs rupees 400. We can train our brain to learn anything we want to. So here we have this kind of sentences, 5 sentences we have. तो आपको होमवर्क में ये सब लिखना है. ये 5 सेंटेंस के सामने पेंसिल से ही लिखना है, whether it is fact or opinion. If you don't have this textbook, then write it down in your fair book. Okay. Then concept time 3.
previewing a text means getting an idea of what the text is about without reading it completely. कोई टेक्स्ट को रीड किए बिना उसके उसके टॉपिक के बारे में जानना, दैट इज़ प्रीव्यूइंग. प्रीव्यू कैसे कहते हैं, वो प्रीव्यूइंग है. सो इट हेल्प्स अस रिकॉल व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक एंड मेक्स रीडिंग easier. The steps to preview a text are given in the table below. So let's see how to preview who I am on page number 69 of your main textbook Honeysuckle. तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है हनीसकल में से 69 पेज पर हमारा यूनिट जो है Who I am, तो वो रीड किए बिना पहले हम लोग ये पहले देखेंगे, स्टेप देखेंगे. तो कैसे प्रीव्यूइंग करना है, पहले टाइटल रीड करना है क्या है हु आई एम, देन लुक एट द पिक्चर्स अगर कुछ है इफ़ एनी. सो देर आर पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन, अलग अलग चिल्ड्रन की अलग अलग पिक्चर्स है. ओके, देन पे क्लोज अटेंशन टू सब टाइटल्स एंड वर्ड्स दैट आर इन बोल्ड. तो वहाँ पे जो बोल्ड हैंड राइटिंग में सब टाइटल्स दिए गए हैं उसमें हम लोग अटेंशन देंगे, वो ज़्यादा रीड करेंगे. मतलब कि कैसे कैसे वर्ड्स है, लाइक मैनी वॉइसेस, राधा, नासिर, रोहित, सरबजीत, डॉल्मा एंड पीटर. सो दिस आर द subtitles. Then read the first few lines below each subtitles. Like my favorite activities is climbing tree. When I grow up, I want to become a seed collector. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. What makes me very angry is when people don't believe ... Then the fifth is ask yourself, based on what I read, what do I think the text is about? I think the text is about different children and their likes and dislikes. Of course, क्योंकि यहाँ पे सबटाइटल्स में क्या है, बहुत सारे से बच्चे के नाम दिए गए हैं, क्योंकि पिक्चर भी बच्चे के थे और नाम भी बहुत बच्चे के आ रहे, और वो अपने ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे कि मुझे ये पसंद है नहीं पसंद है. तो ऑफ कोर्स, सो दिस चैप्टर विल बी अबाउट द चिल्ड्रन, व्हाट दे लाइक एंड दे डोंट लाइक. सो इट्स ऑल अबाउट द प्रीव्यूइंग अ टेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, so in your homework you have to write down facts and opinions here with the help of your pencils, and this concept time, facts and opinions जो हमने डिस्कस की है, the differences between them, वो और जो फैक्ट एंड ओपिनियन की डेफिनेशन है वो आपको फेयर बुक में सब लिखना है 2 times. So it's all about your homework. Okay students, so here we are going to end up our today's lecture. If you find any difficulty regarding this, you are free to ask me. Thank you my dear all students, and have a nice day.